Hi, hello everyone. This is Tushar, your English language trainer and friend. And in my previous video, I've discussed the listening techniques and the tips to crack an IELTS examination. And today I am sharing a few techniques and tips for cracking IELTS reading examination. So let's just start and be with me here. So, in the IELTS reading part, there are going to be 40 questions that you have to attempt in 1 hour. And these questions are divided into three passages. Reading passage 1 will have 1 to 14 question. Reading passage 2 will have 15 to 27. Reading passage 3 will have 27 to 40 questions for academic. Now, the things that you need to be careful about that reading passages are long. Academic reading passages are long. They're quite in information, and you have to be very careful that you don't get lost in the reading the content of the passages because they are informative and they're very interesting. You are there because you want to get a good score and you want to attempt all the 40 questions. So make sure you keep a track of time. So focus on attempting all the 40 questions. Since there is no negative marking, so do not leave any answer blank. Now, before you start writing or before you start looking at the passages, uh, first thing that is very important for IELTS reading when you attempt it is reading the instruction. Read the instruction carefully. Why? Reading instruction is important because sometimes in the reading instruction, when you read instruction, you get to know about whether you have to write in one word, two word, three word, or a number. And also be careful when they write one word and a number or one word or a number. If they say one word and a number means आप एक word भी लिख सकते हो और उसके साथ एक number भी लिख सकते हो. But if they write one word or a number, that means you have to choose either a word or a number, right? ये एक चीज़ होती है रीडिंग जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं. दूसरी चीज़ क्यों हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, because sometimes in the instruction they also mention that you have to find out the answer from passage 1 2 3 और पैसेज ए बी सी. और अगर आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते तो आप क्या करते हो, ए बी सी डी ई एफ जी जितना भी पैरे हैं पैराग्राफ्स हैं आप सब पढ़ते हो. सो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक. सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. Now, the golden rules for IELTS reading exam is answer the questions quickly and accurately. Try to write the answer accurately and quickly. जितनी जल्दी आप स्किम करोगे. सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन रीड करते हो, इंस्ट्रक्शन के बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें देखो कि प्रॉपर कीवर्ड क्या है जिसके बारे में आपको ढूंढना है, किसके बारे में है और उसके बारे में क्या ढूंढना है. आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. तो जितना जल्दी आपको कीवर्ड लोकेट हो जाता है, लोकेशन मिल जाती है, उतना जल्दी आपको आंसर मिलता है. सो इट्स नॉट अबाउट what is the answer, it's about where is the answer. Where is the answer is more important than what is the answer. क्योंकि जहां आपको where मिलता है IELTS रीडिंग में आपको वहाँ आंसर मिलता है. तो लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आंसर क्या है नहीं है वो बाद में आता है. पहले आपको लोकेशन मिलनी ज़रूरी है, राइट लोकेशन मिलनी ज़रूरी है. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग की प्रैक्टिस IELTS की करोगे उतना आपका अच्छा स्कोर बनेगा. So answer the questions quickly and accurately, and if you can't do a question quickly, leave it. अगर आपको एक question difficult लग रहा है and you think that like it's consuming a lot of time, please आप उस question को वहाँ छोड़ो और आप next question पे move on करो. Second is, as the passages are long, you don't have to read them in detail. सारे passages मैंने बोला कि नहीं पढ़ने, interesting भी होते हैं, informative भी होते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने. हमें सिर्फ अपना कीवर्ड ढूंढो, उस कीवर्ड से रिलेटेड उसके आगे पीछे की एक दो और दो लाइंस आगे की वो ढूंढो, वो क्या है उसको पढ़ो. स्किम एंड स्कैन किया और स्किम किया. स्किम मीन्स जो पढ़ लिया उसकी मलाई निकाली अच्छे से कि वो क्या है. ट्राई टू डिस्क्राइब, ट्राई टू गेट एन आइडिया व्हाट इट सेज, क्या बता रहा है. थर्ड, द लेवल, द टेक्स्ट एंड द टास्क बिकम डिफिकल्ट प्रोग्रेसिवली. जैसे जैसे पैसेजेस मूव करते हैं सेकेंड थर्ड डिफिकल्ट हो जाता है. therefore attempt the easy question as quickly as possible. now when I'm saying कि आप easy questions पहले attempt करो, मेरा मतलब ये है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे होते हो फाइनल एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ये समझो कि आपको कौन सा क्वेश्चन रीडिंग का क्वेश्चन फॉर्मेट इजी लगता है. आपको मल्टीपल चॉइस इजी लग रहे हैं, आपको ट्रू फॉल्स इजी लगता है, आपको येस टू नॉट गिवन इजी लग रहा है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स इजी लग रहा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग
आपको पता होना चाहिए कि मेरी कमांड इन क्वेश्चंस पे पहले है तो मैं ये पहले अटेम्प्ट कर लूँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आते हैं अच्छे से। तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस आप अच्छे अटेम्प्ट करते हो वो पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपका टाइम बचा लेंगे। देन यू हैव अराउंड 1.5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलता है कायदे से। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, टेक्निक आपके लिए काम नहीं आएगी। नाउ डू नॉट पैनिक इफ यू कैन ओनली डू जस्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन बट क्विकली। अगर आपका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन और आपने 3 ही किए और टाइम अभी आपको लग रहा है कि यार टाइम तो हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज तो फिर आप उसी को दोबारा अटेम्प्ट करो। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, मुझे पैसेज में समझ नहीं आ रहा, देन यू शुड लीव इट एंड जस्ट मूव ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन और अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, when you finish one passage, check your answer and try to fill all the answer। और अपने आंसर्स जो है वो लिसनिंग की तरह, लिसनिंग में हम क्वेश्चन पेपर पे पहले लिखते हैं तो, लेकिन अनलाइक लिसनिंग, रीडिंग के आंसर स्ट्रेट अवे आप आंसर बुकलेट्स पे लिखो इन कैपिटल लेटर्स, क्योंकि इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। द क्वेश्चन यूजली फॉलो द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप समझो वैसे वैसे ही आंसर पैसेज में होते हैं। रिवर फ्लो मेथड में चल रहा होता है, लेकिन कहीं होता है 1-2% होता है जहाँ पे आंसर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली सारे क्वेश्चन रिवर फ्लो में ही आते हैं। द क्वेश्चन टेस्ट योर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफिक डिटेल। जो ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है वो टेस्ट होती है आपकी, कि आपने पढ़ा और कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया और वहाँ से आपने आंसर ढूंढ लिया। Some question types are used to test how you deal with specific information and general meaning. For example, multiple choice question can test for detail or understanding. Multiple choice question generally students को difficult भी लगते हैं क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो वो आपका थोड़ा डिटेल आपकी स्किल्स चेक करता है। सो आपकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है वहाँ से आपकी MCQ से चेक होती है। द क्वेश्चंस डू नॉट टेस्ट योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट योर एबिलिटी टू यूज इंग्लिश। आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपकी एबिलिटी टू यूज इंग्लिश की, आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में, वो आपकी चेक होती है। एंड ऑल्सो व्हेन यू राइट योर आंसर्स ऑन द आंसर शीट स्ट्रेट अवे आप लिखते हैं तो आप स्पेलिंग और ग्रामर दोनों का ध्यान रखें। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि उसके आगे आर्टिकल ए एंड द यूज़ करना है नहीं करना। पैसेज में जो वर्ब की फॉर्म है वो ING में है, ED में है, तो आपने कन्वर्ट करनी है जब, तो वो कौन सी फॉर्म में जाएगा उसका ज़रूर ध्यान रखो। सो यू हैव 1 आवर, यू हैव 40 क्वेश्चंस टू डू एंड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप रीडिंग में। एंड इफ़ यू नीड any more detail, any more tips, technique and session or workshop, you can reach to me. My contact is in the comment and is in the bio. So thank you so much for staying tuned, and in my next video I'll discuss about writing task 1 and 2 for your detailing and for your understanding. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.